بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان اسد سید. آپ دیکھ رہے ہیں اسد سید لائیو یوٹیوب اور فیس بک چینل. آج جو بات کرنی ہے انتہائی دردناک، انتہائی خوفناک اور اتنی دکھ سے لبریز ہے یہ کہانی جس کے اوپر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں. اور اس پہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 20 سال سے بات ہو رہی ہے. 20 سال سے لگاتار لوگ باتیں کر رہے ہیں. لوگ اس کا کھرا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں ملتا نہیں. ملتا ہے لیکن مصلحت پسندی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے کہا تھا مصلحت ہی وہ تلوار ہے جس سے ہمیشہ حقیقت کا جسم لو لوہان کیا جاتا ہے. مصلحت، آج یہ مصلحت ہے، آج وہ مصلحت ہے. میں نے آج کچھ کلپ دکھانے ہیں آپ کو، کیونکہ میں بولوں گا تو آپ کو لگے گا کہ شاید میں کسی تعصب کا شکار ہو گیا ہوں، میں کسی خاص گروہ، کسی خاص ٹولے کا مخالف ہوں، اس لیے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں بہتان لگا رہا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ انہی کی زبانی، انہی کے کلمات، انہی کے الفاظ سے سنیں کہ حقیقت کیا ہے. سانحہ کوئٹہ جو مچھ میں ہوا، جس میں 11 افراد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا. وہ کان کن کہ جو کان کے اندر مزدوری کر رہے تھے. انتہائی پورے پاکستان کا سب سے مشکل ترین جو پیشہ ہے وہ کان کنی ہے. کان کے اندر کام کرنا. وہ اس کان کنی کے اندر کام کر کے تھک ہار کے جب اپنے اس غار نما جو گھر ہے اس میں آرام کر رہے تھے تو چند افراد آتے ہیں. آ کے پہلے تو ان کو یرغمال بناتے ہیں، ان کی آنکھیں باندھتے ہیں، ان کے ہاتھ پیچھے باندھتے ہیں. پھر ان کو جس چھری سے ذبح کیا جاتا ہے وہ چھری وہ والی چھری ہے کہ جس کے ساتھ فروٹ کاٹا جاتا ہے. چھوٹی سی چھری، وہ بھی آپ کو دکھے گی یہاں پہ. اس چھوٹی سی چھری کے ساتھ ان کو پشت سے اس طرح اذیت کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، اس طرح کاٹا جاتا ہے جس طرح کوئی جانوروں کو بھی نہیں کاٹتا. اگر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جانوروں کو ذبح کرنے کے بھی چند اصول ہیں کہ کند چھری سے اور ایسی چھری سے کہ جو اس جانور کے مطابق نہ ہو اس سے نہ کاٹا جائے تاکہ اسے اذیت نہ ہو. لیکن ہمارے پاکستان کے بلوچستان کے کوئٹہ کے بالکل پاس مچھ کے ایریے میں اس لیے 11 افراد کو کاٹ دیا گیا کہ وہ ہزارہ تھے، وہ شیعہ تھے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کا پروف بھی میں نے ابھی دینا ہے آپ کو. اور یہ جو ہم نے ایک ڈرامہ بنا رکھا ہے، ہم نے جو حقیقت سے نظریں چرانے کے لیے، مصلحت پسندی کا شکار ہونے کے لیے یہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہوئی ہے نا کہ وہ نامعلوم شخص آئے اور آ کے چلے گئے، تو کچھ حقائق ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو نامعلوم جن کو آپ کہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں. اگر آج آپ کی زبان بندی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. 14 مارچ 2014 کوئٹہ ہاکی گراؤنڈ جناح روڈ پہ ایک جلسہ ہوتا ہے. اس جماعت کا جلسہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی وزارت داخلہ کے تحت آلریڈی بینڈ جماعت ہے. کس نے بینڈ کیا؟ کسی سنی جماعت نے بینڈ نہیں کیا، کسی شیعہ نے نہیں کیا، کسی ہیومن رائٹ کے ادارے نے نہیں کیا، بلکہ آپ کی وزارت داخلہ نے اسے بینڈ جماعت قرار دیا. وہ بینڈ جماعت جاتی ہے کوئٹہ میں، سرعام جلسہ کرتی ہے اور اس میں کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگتے ہیں. اس میں ایک ترانہ پڑھا جاتا ہے، وہ میں نہیں سناؤں گا، وہ آپ خود سنیں.
जी, तो आपने सुन लिया, जो सेंचुरी तुमने क्वेटा में कर दी, रिकॉर्ड उसका दुनिया में बाकी रहेगा। ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, आपको पता है? 2013-2014 में 100 लाशें गिराई गई थी, इन्हीं हज़ारा की, इन्हीं शियों की, जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का दम भरते हैं, असला नहीं पकड़ते। पाकिस्तान की पढ़े लिखे जो अक़वाम हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जिन दो कौमों का जिक्र होता है, वो लिटरेसी रेट जिनका सबसे बेहतर है, वो क्वेटा की हज़ारा कम्युनिटी की तादाद है। जी, क्योंकि ये असला नहीं उठाते, तो इनकी 100 लाशें गिराई गई और बाद में आपकी छतरी थले क्वेटा में जलसा होता है और उसमें वो सरेआम ऐलान करते हैं कि हाँ, हमने ये सेंचुरी बनाई है, हम इस पे खुश हैं और अब हम टेस्ट नहीं खेलेंगे, अब हम टुक टुक नहीं करेंगे मिसबा की तरह। ये भी आपने सुना, अब हम टेस्ट नहीं खेलेंगे बल्कि 100 लाशें गिराएंगे। ये किसने कहा? लश्कर जंगवी, सिवा साहबा और मौजूदा जो इन्होंने नाम चेंज किया है अहले सुन्नत वल जमात के कायदीन के बैठे हुए स्टेज के ऊपर मौजूद होने के बावजूद उन्हीं का एक शख्स ये तराना गा रहा है। ये देख लिया ना आपने। अब ये तस्वीर भी देखें कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसी अहमद लुधियानवी के जो इस जलसे में शरीक था, जो इस जलसे का करता धरता था, उसको हमारे अफसरान क्या दे रहे हैं? शील्ड। क्या दे रहे हैं? इनाम। किस बात पे? क्योंकि वो अमन बहुत ज़्यादा फैला रहा है पाकिस्तान में, इसलिए। अच्छा, आगे चलते हैं। 25 मई 2015 क्वेटा की मेन शाहराह चौक के अंदर खड़ा हुआ इसी लश्कर जंगवी सिपा साहबा मौजूदा अहले सुन्नत वल जमात का एक लीडर तकरीर करते हुए कहता है, अगर हमने हुक्म दिया तो पुलिस का असला नहीं चलेगा। क्या चलेगा? हर सुन्नी, वो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, गो के सुन्नी उनको अपने आप से अलग करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिपा साहबा वाले, लश्कर जंगवी वाले गद्दार हैं, इस मुल्क के खाइन हैं, इनका अहले सुन्नत से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जमात का नाम रख रखा है अहले सुन्नत वल जमात। हर सुन्नी सीने पे बम बांध कर निकलेगा। ये कौन कह रहा है? ये लश्कर जंगवी का, सिपा साहबा का, अहले सुन्नत वल जमात जो इनकी मौजूदा तंजीम है, उसका एक क्वेटा का सरबराह कह रहा है। 25 मई 2015, कोई मैं 90 की दहाई से पहले की बातें नहीं कर रहा, ये बिल्कुल 2015 यानी 5 साल पहले। अब नारों का दिन नहीं रहा, अब लाशें गिरेंगी। ये कौन कह रहा है? लश्कर जंगवी, सिपा साहबा, अहले सुन्नत वल जमात के वो रहनुमा जो सरेआम के एफसी के आपके पुलिस के ये असला नहीं चलेगा, तो ये हर सुन्नी अपने सीने पर बम बांध कर निकलेंगे। और इसी क्लिप में जो अभी आप सुन रहे हैं, इसी क्लिप के एंड में वो कहते हैं इंतजामिया जरूर सुने। ये देख लें जी, वो कहते हैं इंतजामिया जरूर सुने, इंतजामिया को जरूर पता करना चाहिए, जरूर पता चलना चाहिए कि हमारे इरादे क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं। ये वो बार बार उसमें जिक्र कर रहे हैं। अच्छा जी, मुतशद्दद जलाओ, घेराव, आग लगाना, गोलियां चलाना, पुलिस एहलकारों को जख्मी करना, इस पे एक बार नहीं कई बार रहमान मलिक ने कहा कि जी इसके पीछे लश्कर जंगवी है, सिपा साहबा है। कमर जमान कायरा सैकड़ों बार कह चुके हैं कि लश्कर जंगवी, सिपा साहबा एक बहुत ज़्यादा दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने में मुलव्वस है। ये कमर जमान कायरा भी कह चुके हैं। वीडियो कैमरों में महफूज है और ज्यादातर लोग सिपाही साहबा के थे, वो लश्कर जंगवी थे, सिपाही साहबा के थे, वो लश्कर जंगवी थे। आपको झंडे नजर आ रहे हैं और इन झंडों का किस सियासी जमात और किस हुकूमत के साथ ताल्लुक है या उनके साथ इनका अलायंस है, ये भी आपको पता है। ये कौन सा पैगाम है? ये इश्क नबी का कौन सा रंग है कि आप अपने लोगों को मारे, आप आगे लगा दे। अच्छा, माजी में इमरान खान साहब क्या कहते थे इसी जमात के बारे में? ये तशरीफ़ ले जाते हैं क्वेटा में हज़ारा का धरना चल रहा था उन दिनों। इसी किस्म के एक जो है वो क्वेटा में
हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, जिसमें हज़ारा को निशाना बनाया गया, शिया को निशाना बनाया गया, उनको कत्ल किया गया, तो वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी लश्कर जंगवी का नाम लेकर कहता हूँ, कोई नाम नहीं ले रहा, मैं नाम लेकर कहता हूँ और मजम्मत करता हूँ कि जो ये दहशतगर्दी तुम लोग कर रहे हो, इससे इस्लाम भी बदनाम हो रहा है और इंसानियत भी शर्मिंदा हो रही है। ये कहा करते थे हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर। लश्कर जंगवी का मैं नाम लेके कहता हूं कि इस दहशतगर्दी को अगर आप इस्लाम का नाम दे रहे हैं, ये अगर आप इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई इस्लाम से दुश्मनी नहीं कर सकता। इस्लाम तो है इंसानियत का नाम। ये तो आप काफिरों को भी ये नहीं कर सकते जो आप अपने ही मजहब के एक दूसरे फिरके को कर रहे हैं। मैं आपकी सख्त मजम्मत करता हूं, मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपकी सख्त मजम्मत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये जो दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, आप इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप इंसान के भी दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन। लेकिन ये माजी का मौक़िफ़ है ना। अच्छा, ये उन्होंने कब कहा? ये 21 फरवरी 2013 को, 21 फरवरी 2013 को कहा और इनके राइट साइड पे बैठे हुए हैं जनाब मौजूदा सदर ममलकत आरफ अलवी साहब और इनके लेफ्ट पे बैठे हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। अभी देखते जाएंगे। अच्छा, लश्कर जंगवी, सिपा साहबा, मौजूदा अहले सुन्नत वल जमात, ये चौधरी निसार नून लीग के दौर में करते हैं मुलाकातें इस्लामाबाद में और लेते हैं जलसों की इजाज़त। चौधरी निसार इनकी करते हैं सपोर्ट और ये सरेआम हॉकी ग्राउंड इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद से बिल्कुल मुल्हक़ है, उस ग्राउंड में ये जलसे करते हैं और शिया काफर काफर शिया काफर के नारे लगवाते हैं और हमारी पूरी इंतज़ामिया, पूरी वजारत दाखिला और सारे एजेंसियां, सारे इदारे खामोश तमाशाई बने रहते हैं। वो बम बांधने की बात करते हैं, कत्ल व गारतगरी करने की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि हम 100 लाशें गिराएंगे, वो बात करते हैं कि हम असला चलाएंगे, लाशें गिराएंगे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। आप कहाँ होते हैं? माजी में तो आप कहते थे इमरान खान साहब कि लश्कर जंगवी जो है वो लाशें गिरा रहा है और लश्कर जंगवी ये सारी वारदातें कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि हम तहकीक करेंगे। किस बात की तहकीक करेंगे? क्या आपको नहीं पता कि ये कौन है जो ये हादसा कर रहा है? अभी जिम्मेदारी कबूल की है दाइश ने इसकी। दाइश ने ये कहा है कि हमने ये कत्ल किए हैं, लेकिन क्या अबू बकर बगदादी जो है वो आके कत्ल कर गया? कोई तो है ना। हम तो पिछले 5 साल से चीख के और चिल्ला के तुम्हें बता रहे थे कि लश्कर जंगवी और सिपा साहबा जो है वो दाइश के साथ इत्तेहाद कर चुका है और यहाँ पे वही काम करेगा जो लश्कर जंगवी को ऊपर से आर्डर मिलेंगे। दाइश ने ज़ाहिरी बात है किसी को तो ख़रीदा ना पाकिस्तान में। फिर आप कहते हैं कि जी भारत और रा इसमें मुलव्वस है। हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कौन? कोई तो है ना जो आपके बॉर्डर के अंदर आके बॉर्डर के अंदर वाले लोगों से रब्ता करता है, उनको पैसा फराम करता है, उनको असला फराम करता है और वो तुम्हारे ही लोगों को कत्ल करते हैं। ये इतनी आसानी से जान नहीं छूटने वाली कि अगर आप ये कह रहे हो कि ना मालूम मालूम आपको भी है, मुझे भी मालूम है और आप सुन भी रहे हो। मैं सुना रहा हूँ इसीलिए ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मैं अपने पास से ही बातें कर रहा हूँ। सुन लिया ना, ये दरिंदे कहाँ पे हैं? झंग कितना दूर है पंजाब में से? क्वेटा कितना दूर है? बिल्कुल दूर नहीं है। जिस दिन आपने इरादा कर लिया कि आपने इन चहेतों को मात देनी है और इनको आपने इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को ख़त्म करना है, आप एक दिन के अंदर कर सकते हैं। जब सानिया APS पे अटैक हुआ था और आपने वज़ीरिस्तान पूरे में से दहशतगर्दों को ख़त्म करने का इरादा किया था, कर लिया था ना, हो गया था। लेकिन 9 लाख की आबादी, हज़ारा टाउन के जो हज़ारा कम्यूनिटी है उनकी 9 लाख आबादी और दुनिया की सबसे बेहतरीन मेरे मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, 8वें नंबर की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फौज और 8 लाख की कम्युनिटी को सेव नहीं कर सकती। ये एक सवालिया निशान है।
معلوم تو ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ کی سیکیورٹی پہ، آپ کے ارادوں پہ انگلی ضرور اٹھتی رہے گی۔ اس لیے برائے مہربانی ایک جاتے جاتے بات بتاتا چلوں کہ میرے والد محترم فوجی ہیں، فوج میں رہے ہیں، اور میں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں پہ فوج کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، جہاں پہ اداروں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، لیکن جہاں پہ آپ غلط ہیں وہاں پہ تنقید ضرور کی جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔